Welcome you all in the next video lecture of chemistry. We are beginning the second chapter of chemistry named acids, bases and salts. So this is the first class of acid, bases and salts. I hope you have covered up the first chapter of chemistry with chemical reaction and equations. मुझे समझ नहीं आ रहा, कंप्लीट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा आपसे, तो कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं. But I want to tell you one thing, that this is the time to show our honesty, क्योंकि गवर्नमेंट इस ईयर को 0 ईयर घोषित नहीं करेगी. अगर सितंबर अक्टूबर कभी भी स्कूल अगर चालू होते हैं तो मे बी पॉसिबल दैट दे कैन रिड्यूस अप टू 10-20% सिलेबस, बट यू beginning syllabus you must go on, because at the end we will not have the sufficient time for the preparation of 10th board examination, and you must see the if possible I will give you the last year 10th standard paper. अभी तक मैंने इसलिए नहीं दिया कि उसका देने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे. तो देखें, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है. आई वांट टू स्टार्ट विद द एनटीएससी क्लासेस आल्सो, बट I am not getting the proper response, that you are not clearly watching the videos on the time, and the interactive link is not there. So I just want to tell you that in week we will have the 2 interactive sessions on Wednesday as well as on Saturday. Wednesday we will interact with all the classes of Monday, Tuesday. We will have the interactive session on the particular time, and now onwards the video will also be available only for 1 hour in a particular time slot. So you need to watch the video in that particular session. In this video you need to write the notes in the video itself. So just write the videos, write the notes from the video. So acid, bases and salts, ये सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है. सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. केमिस्ट्री में जितने केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का सेकंड और फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द 2 लेंथी चैप्टर इन द केमिस्ट्री. सो इट मीन टेक, अगर हम ये रेगुलर क्लास में पढ़ रहे होते तो करीब 18 क्लास इसको कंप्लीट करने में लगती हैं. सेकंड चैप्टर को वीडियोस में हम देखते हैं कितने जल्दी या कितने टाइम में ये चैप्टर खत्म होता है. आपको कंटिन्यूअसली इसको रिवाइज करने की जरूरत है. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एक्चुअली हमारे 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का कंटिन्यूएशन है. सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर अराउंड अस इज प्योर और इम्प्योर. वहां पे प्योर मैटर को हमने डिवाइड किया था कि प्योर मैटर कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स वी हैव डिवाइडेड इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, जो कि आगे थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री में हमको मिलने वाला है. लेकिन कंपाउंड दूसरा हमने पढ़ा था कंपाउंड्स. कंपाउंड्स हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स आर द होमोजेनियस मिक्सचर, compounds are the formed with the chemical equation in the definite proportion of mass. So compounds हमने केवल वहीं तक properties पढ़ी थी compounds की. Compounds cannot be separated into its constituent by the physical process. Compounds are having fixed melting and boiling point. Compounds cannot be break down into its constituent by any physical process. Hello everyone. So we were discussing regarding the acid, bases and salts. Acid, bases and salts के बारे में हमारी बात हुई थी कि acid, bases and salts के जो चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर का फर्दर वर्जन है, जिसमें हमने कंपाउंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो प्लीज राइट डाउन द नोट्स. लिखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, all the compounds can be divided. All the compounds can be divided into three groups. Acids, bases and salts. Acids, bases and salts. So actually acid, bases and salts are the division of compounds, and the properties of compounds we already discussed in 9th standard. So before going too deep in this chapter, we need to discuss an important subtopic that we call indicators. Actually they are the dyes color components which can let us know this particular solution is acid, basis or salt. So we must discuss them indicators, and you can get one questions in examination from the indicators. So write down indicators. Indicators लिखेंगे. An indicator is a dye
An indicator is a dye, dye, dye that change color when put it into an acid or a base. Put into acid or a base. चलिए, तो लाइन चेंज करके लिखेंगे the three most common indicator to test for acid and base are, पहला लिखेंगे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज and phenolphthalein. Litmus, methyl orange and phenolphthalein. ये तीन तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो कि ज्यादा यूज किए जाते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, जिसको हम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस या मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस बनता है या कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, सॉल्ट होगा, ये पता कैसे लगाएंगे? वी कैन चेक इट दैट बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स one among the three, that is litmus, methyl orange and phenolphthalein. First one we are going to discuss regarding the litmus. So write down the subheading as a litmus indicator. लिटमस इंडिकेटर एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये क्वेश्चन आया था 2016 में। ये लिटमस इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, व्हाई? बिकॉज़ इट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लिचेन, LICHEN, एक प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर, इसका जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे लिटमस का तो इसका न्यूट्रल कलर बनेगा पर्पल, और ये कलर चेंज कैसे करता है? लिटमस जो है, लिटमस एक्चुअली दो कलर में हम इसको पेपर में यूज करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ये जार है जिसमें कोई सॉल्यूशन रखा है, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है। मान लीजिए मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, मैंने इसको इसके अंदर डाला और अगर इसका ब्लू का कलर रेड हो गया, दैट मींस द सॉल्यूशन व्हिच वी आर टेस्टिंग विद इज एसिडिक। मतलब ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर रेड टर्न करता है, और रेड लिटमस पेपर, मान लीजिए मेरे पास दूसरा जार है जिसमें कोई सॉल्यूशन रखा है, इसमें मैंने रेड लिटमस पेपर डाल दिया तो इसका कलर अगर ब्लू हो जाता है तो ये बेसिक होगा। इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर अगर हमने एसिड, मान लीजिए कोई एसिड है, इसमें अगर हमने रेड डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज इट्स कलर। So what we know about the litmus? Litmus is a natural indicator which has been obtained from a plant called lichen, and its neutral color is purple. If you make a solution, it will be a purple color solution. It is been obtained in the two type of paper, that is blue litmus paper and red. Blue litmus paper turns red in color in acidic solution, and red litmus paper turns blue in color in basic solution. So write down. Litmus is a natural indicator. Litmus is a natural indicator obtained from the bark of the plant, called lichen, LICHEN, lichen. Its neutral color is purple. Neutral color क्या है? पर्पल। लाइन चेंज करके लिखेंगे, 1 पॉइंट डाल के, an acid turns blue litmus to red. ब्लू कलर के पेपर को एक एसिड रेड टर्न कर देगा। An acid turns blue litmus to red. सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे, a base turns red litmus to blue. A base turns red litmus to blue.
Okay, fine. So what we need to understand from the litmus, दो चीजें याद रखनी है, नेचुरल इंडिकेटर है और इसका कलर चेंज क्या है। अगर लिटमस ब्लू टू रेड हो रहा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर रेड टू ब्लू हो रहा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो we just move on to the next important indicator, that is methyl orange. So write on the next subheading methyl orange indicator. ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, केमिस्ट्री लैब में बनाए जाते हैं दूसरे कंपाउंड्स को, नेचर को टेस्ट करने के लिए। कोई नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, इट्स अ सिंथेटिक इंडिकेटर, आर्टिफिशियल मैन मेड इंडिकेटर। इसके जगह कलर ही इसका दिख रहा है ऑरेंज कलर का होगा, न्यूट्रल जब आप इसको देखेंगे तो इसका ऑरेंज कलर होगा। एंड हाउ इट इज गोइंग टू चेंज इट्स कलर इनटू द डिफरेंट सॉल्यूशन, दैट इज द टास्क। सो यू जस्ट राइट डाउन methyl orange is a synthetic indicator. Methyl orange is a synthetic indicator of neutral color orange. Hope you all are writing with my speed. Methyl orange is a synthetic indicator with neutral color orange. लाइन चेंज करके कलर चेंज लिख लेते हैं इसका। Methyl orange indicator gives, methyl orange indicator gives red color in acid solution, second point लिखेंगे methyl orange indicator gives yellow color in basic solution, yellow color in basic solution. So methyl orange, अगर orange to red color इसका हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में डाला गया, और अगर येलो कलर में ये टर्न हो जाए तो उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। चलो रेड इन एसिडिक कलर, येलो इन बेसिक कलर। चलो राइट ऑन द नेक्स्ट वन, याद रखिएगा कलर चेंज। थर्ड वन फेनोल्फथलीन, PHENO PTH PHENOL phenol PHTH PHTH ALEIN write on the spelling phenolphthalein PHENOL PHTH ALEIN phenolphthalein। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और इसका न्यूट्रल कलर पर्पल है। सॉरी कलरलेस, इसका जो न्यूट्रल कलर है वो कलरलेस है, पानी की तरह। Now this will mean it is also a synthetic indicator. Synthetic indicator which is colorless in nature, colorless in nature। लाइन चेंज करके लिखेंगे phenolphthalein indicator is colorless in acid solution, colorless in acid solution। लाइन चेंज करके लिखेंगे phenolphthalein। So phenolphthalein is a colorless indicator and it remains colorless in acidic solution। Second point लिखेंगे it turns pink in basic solution, पिंक कलर का हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में डालने का। क्वेश्चन अंदर से फंसा देता है भैया, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को नाम देके पूछ लेगा इसमें phenolphthalein डालेंगे तो कलर चेंज क्या होगा, याद रखेंगे बेसिक सॉल्यूशन में phenolphthalein का कलर पिंक हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा ये तो थे तीन कॉमन इंडिकेटर जिसको हम लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं। लिटमस इसमें से नेचुरल है, phenolphthalein और methyl orange दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक आपको देखिए, अगर आपकी शर्ट पे या कपड़ों पे करी का दाग लग जाए, सब्जी गिर जाती है, अगर सब्जी गिर जाती है, सब्जी को जब आप वॉश करते हैं
तो आप जब सोप से उसको वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा उसका कलर चेंज हो जाता है। जो भी आप यूज कर रहे हैं करी के अंदर या सब्जी के अंदर जो भी टर्मरिक है, इट इज यूज्ड टू चेंजेस इट्स कलर, so that it shows that there must be the soap, it is showing the nature of the soap. So write down the turmeric is also a natural indicator. न्यूट्रल कलर तो बताने की जरूरत नहीं है, टर्मरिक का न्यूट्रल कलर क्या है, येलो। टर्मरिक is also a natural indicator. A yellow color dye which turns red in basic solution, and remains colorless in acidic solution. अगर आप टर्मरिक की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर टर्मरिक डाल देंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोप से रगड़ रहे हैं तो सोप का सॉल्यूशन पे सोप का जो नेचर है वो बेसिक नेचर की होती है। सोप बेसिक सॉल्यूशन अगर कोई भी डाल देंगे टर्मरिक में तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इसके अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। रेड कैबेज, गोभी, लाल गोभी, पत्ता गोभी सुना था, हरी गोभी सुना था, सब रेड गोभी, रेड कैबेज कहां से निकला? रेड कैबेज भी एक कैबेज है, एक वैरायटी है। इवोल्यूशन के दौरान रेड कैबेज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो रेड कैबेज में क्या होता है? रेड कैबेज इज आल्सो द नेचुरल इंडिकेटर। ये भी क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाता है, ग्रीन, है ना। तो रेड कैबेज के ऊपर आप बेसिक सॉल्यूशन डाल दो, ग्रीन कैबेज बन जाएगा, फिर आप सब्जी बना लेना इसकी, है ना। सब्जी बना के फिर करी डाल देना आपके ऊपर, करी डाल दोगे तो फिर उसमें से हल्दी आ जाएगी, टर्मरिक आ जाएगी, तो उसको फिर साबुन से धो लेना, है ना। क्या बकवास कर रहे हैं। चलो, रेड कैबेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। ये रेड कैबेज इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। रेड कैबेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स and it is also a natural indicator. It is red in color. Full stop. It remains red in acidic solution. It remains red in acidic solution, but turns green in basic solution. So they all are the indicators that we have discussed. Three of them is the most common, that is litmus, methyl orange and phenolphthalein. Litmus turn blue to red in acidic solution and red to blue in basic. Methyl orange is neutral color is orange and it turns orange to red in acidic solution and orange to yellow in basic solution. Phenolphthalein is a colorless synthetic indicator which remains colorless in acidic solution but turns pink in basic solution. That are some of the natural indicators, that is turmeric is yellow in neutral color which remains yellow in acidic solution but turns red in basic solution, and same the red cabbage which we obtained from the red cabbage leaf. It is red in color which remains red in acidic solution and it turns to be green while kept into the basic solution. So next indicators we are going to discuss olfactory indicators. Write down the heading olfactory indicators. Olfactory indicators. इसमें लिखेंगे those substance whose smell changes in acidic or basic solutions. Those substance whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators. इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल के। ओनियन, प्याज, ओनियन की स्मेल, ओनियन के अंदर एक स्मेल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ओनियन स्मेल does not being destroyed by the acidic solution, but when they are treated with the basic solution, the onion smell get destroyed. So write down
Onion has a characteristic smell. Onion has a characteristic smell when a basic solution like sodium hydroxide is added to onions, then the onion smell is not detected. Hence we can say that the basic solution destroy the characteristic smell of onion. The basic solution destroy the characteristic smell of onion. But the acidic solution could not destroy the smell of onion. स्मेल ऑफ ओनियन। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अब मुझे इसको टेस्ट करना है, इसका नेचर क्या है, किसी रिएक्शन से मिल के आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक ओनियन का एक जूस बना सकते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा, या ओनियन एक्सट्रैक्ट हम ले सकते हैं। इसको इस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप मैंने इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर डाला। आफ्टर सम टाइम व्हेन आई जस्ट चेक द स्मेल ऑफ ओनियन, अगर मैं इसकी स्मेल को दोबारा चेक करता हूँ और मुझे इसके अंदर ओनियन की स्मेल नहीं मिलती है, मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, ठीक। और मान लीजिए अगर ये एसिडिक नेचर का होता और इसको डालने के बाद भी अगर हम चेक करते तो ओनियन की स्मेल हमको आती, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता। सो दिस इज द टेस्ट। सो नेक्स्ट वन इज वनीला, VANILLA, वनीला। आइसक्रीम नहीं खाना है अभी, वनीला देख के आइसक्रीम आया है अभी, वनीला पे आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडे से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। मैं तो बिना पंखे के आपके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत पसीना आ रहा है, 37 डिग्री की ह्यूमिड गर्मी है, फैन चला नहीं सकते, नॉइस आती है, इको बन जाता है, ठीक है, एसी चला नहीं सकते, कोरोना आ जाएगा, पर क्या करें। चलिए वनीला के साथ भी सेम कहानी है, बेसिक सॉल्यूशन में डालो, वनीला के पास भी अपनी खुद की एक स्मेल होती है ना, बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे इसको तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो स्मेल खत्म नहीं होगी। सो राइट नाउ वनीला also have the characteristic pleasant smell if a basic solution is added then its characteristic smell is destroyed. But in acidic solution the smell remains same. चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। You have been, write down the question, you have been provided with 3 test tubes. One of them contained distilled water. And other to contain an acidic solution, and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper
if you are given only red litmus paper, how can you identify the content of each test tube? How can you identify the content of each test tube? चलिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में लिटमस, एक में डिस्टिल्ड वाटर है जो कि न्यूट्रल कलर का होता है, जो कि न्यूट्रल नेचर का है, ना एसिड है ना बेस है ना सॉल्ट है। चलिए, और एक में किसी में एसिड है और एक में किसी में बेस है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आपको केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया है, रेड, आपको तीनों को नेचर डिटेक्ट करना है, कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड होगा, कौन से में वाटर होगा, कौन से में बेस होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें मैंने रेड डाल के देखा, मान लीजिए कलर चेंज नहीं हुआ, तो कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब ए जो है या तो वाटर हो सकता है या एसिड हो सकता है, ठीक, क्योंकि वाटर न्यूट्रल नेचर का है तो उसमें भी कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में भी रेड कलर चेंज, कलर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। फिर हमने बी में डाल दिया, सेम सिचुएशन आती है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो या तो ये वाटर होगा या फिर एसिड होगा। अब तीसरे में अगर हम डाल के देखते हैं तो जाहिर सी बात है कलर चेंज तो होगा, तो अगर कलर चेंज होगा तो ये रेड से क्या कलर चेंज हो जाएगा, इसका ब्लू। अगर ब्लू हो गया मतलब इसका नेचर किस नेचर का, ये बेसिक है, तो ये सी तो डिटेक्ट हो गया, ये सी बेसिक नेचर का है। अब देखिए जो लिटमस था उसका कलर हो गया ब्लू नेचर, अब ब्लू नेचर का लिटमस हो गया, इस ब्लू को फिर हमने बी में डाला, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये केवल वाटर होगा क्योंकि कलर चेंज नहीं कर रहा। और अगर इसको ए में डाला तो वापस से ब्लू ने कलर चेंज कर दिया रेड, तो ब्लू से अगर रेड में चेंज हो गया तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक, बेसिक और वाटर। लाइक दिस वे he can find out the content of the 3 test tube, whether they are acid, bases or neutral substances or distilled water. Hope you like this video. You can understand the basic graphics of the acid, bases and salts. इसमें केवल इस वीडियो में हमने जो बात की है वो केवल इंडिकेटर्स को लेके बात है। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस टेबल, आपको इस टेबल को तैयार करना है। इसमें क्या है, कुछ एसिड्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, ये एसिड्स और इनके सोर्स आपको याद करने हैं, ठीक है, एसिड्स एंड देयर सोर्स। सो यू जस्ट राइट डाउन दिस टेबल। यू इसके बाद आप मेन हेडिंग डाल दें एसिड्स, क्योंकि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये टेबल तैयार कर लें। एसिड्स में आप सबसे पहले लिखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये विनेगर में मिलती है, सिरका जिसको बोलते हैं, विनेगर। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में मिलती है, नींबू, नींबू को क्या बोलते हैं, लेमन, ऑरेंज, खट्टे खट्टे उसमें जो मिलती है सिट्रिक एसिड। फिर आप लिखेंगे लैक्टिक एसिड, कहाँ मिलती है, कर्ड, दही में मिलती है लैक्टिक एसिड। टार्टरिक एसिड, TARTIRIC, टार्टरिक एसिड। टर्मरिन, इमली एंड अनराइप्ड ग्रेप्स, जो ज्यादा खट्टी चीजें होती है ना उनमें मिलती है टार्टरिक एसिड, याद रखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे थर्ड चैप्टर में। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड मिलती है टोमेटो। सो और इसके अलावा ये तो थी सब नेचुरल एसिड, एडिबल एसिड जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिंथेटिक एसिड्स हैं जिनको आप जानने को कोशिश करें, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, आप जानते हैं इसको। ये H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है,
फर्स्ट चैप्टर याद रखो, फर्स्ट चैप्टर का फ्रंट पेज मैंने तैयार करने के लिए बोला है। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसको भी लिख रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड की बात करें हम तो आपको याद रखना CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी लिख रहे हैं आप CH2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी लिख रहे हैं वीक में, H2SO3 सल्फ्यूरस। ये इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं। So there are the some edible acids and their sources we have written. Here are the some synthetic strong acid and the weak acid. So you just prepare for the next class. This is your homework and you complete the notes up to the indicators and this table. We will meet you in the next class where we will discuss the properties of acids. Thank you.